Guru Sakshat Param Brahma. Tasmai Shri Guruve Namah. All right, so I'm going to share the white screen, and in detail, today we will understand the principle of Yog Karaka and the Maraka. Ladies and gentlemen, the first thing you have to understand is when we make a kundli, okay, suppose, okay, just give me a second. Erase. Okay. So let me put the, wait. Okay. The color, the black. Okay. Om Guruve Namah. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Brahm Brahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Om Vishnu, Vishnu, Vishnu. Okay, so ladies and gentlemen, what are we looking at? Somebody is playing my old video. Okay. All right. The mouse is working a little crazy today. All right. This one. I think that's fine. Okay, Mesh Lagna, Aries. Aries rising. Okay. Now, in the Aries rising, what are the rules for the Yog Karak and the Marak? Okay. First, we will divide our grahas into Dhanava and the Deva Lagna, or Deva or the Daitya Lagna. So, the Deva Lagna grahas are, the biggest one is Surya Devata, then the Brahaspati, okay, then the Chandra, and then the Mangala, Mars. The Daitya Lagna, we have Venus, which is Shukracharya, Shani, which is Saturn, Rahu, and Ketu. Okay, all right. And Mercury is neutral. Okay, it's a neutral planet. It is more friendly to Daityas than the Devas. Okay, Mercury has inimical relationship with Moon and Mars. Okay, since Ketu is the higher form of Mars, Mercury also doesn't go well with Ketu. Rest with all the planets, Mercury is friendly, is extremely friendly. Okay,
Now, this is something, make note of it. Just keep it on the parking lot. Okay. Just remember this thing. Rule number 1 for the Yoga Karak Graha is that any planet should be friendly with Lagna Lord. Okay. Rule number 2, it should be Lord of Trikona houses, HS. It should be Lord of Kendra, excluding Marka houses. Excluding Marka. So Marka is 2 and 7, so that means the 7th house. Okay, point number 1. All right. Now, further exceptions. There are some exceptions जो मैं आपको फर्स्ट लेवल पे नहीं समझा सकता था. Why? Because फिर आपको exceptions समझ नहीं आनी थी. Now you worked for 1 week. You have questions. Now I can tell you exceptions. Exception is that planets with Jal Tattva and Agni Tattva, Jal and Agni Tattva are Marak to each other. So even if Surya is friendly to Chandrama, but their tattvas doesn't match. Surya is an Agni Tattva, Chandra is a Jal Tattva. Okay, so keep it in the parking lot. We'll come to this. All right. 5th exception. If a planet is Lord of Dhan Bhavas, Dhan houses, which is 2nd and 11, it becomes Yog Karak. Lord of both, not one, both Dhan Bhavas, then it becomes a Yog Karak. 6th, another exception here. If a planet has one Marka house and one Kendra lordship, it behaves neutral, result will be based on placement, its placement. Now, Mesh Lagna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
there's a star rule which I taught you last week. Planet should be lord of Kendra and Trikona, KD and TK. Now in the Mesh Lagna, there's no planet which is lord of Kendra and Trikona. So the basic principle Muni Prashva has said does not apply here. The basic star principle. But there are 6 more principles, because Mesh Lagna should not be actually, it should not be like, जिसको कहते हैं ना कि एक सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए मेष लगन के साथ। ऐसे बहुत से लगन है जहां पर कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जो केंद्र त्रिकोण में, दोनों केंद्र त्रिकोण का स्वामी कोई भी नहीं बना। But then the other 6 principles which are exceptions, let me find out the friendly planets. Sun, Jupiter, Moon and Mars. Okay, they are one team, team A. यहां का स्वामी मंगल बना, मार्स। उसने अपने सभी दोस्तों को अच्छी जगहें दे दी। अच्छी जगहें। अपने आप को पहला घर दिया सबसे पहले, चंद्रमा को चतुर्थ दे दिया, सूर्य को पंचम दे दिया, बृहस्पति को नवम दे दिया। अपनी टीम पूरी कर ली उसने। अब इस टीम से हुआ ये कि इसको अपने लिए 8वां घर भी लेना पड़ा और बृहस्पति को 12वां घर भी लेना पड़ा। ठीक है। अब यहां पर चाहे योग कारक ग्रह त्रिक भावों का स्वामी क्यों ना हो जाए, 6, 8 एंड 12 में से किसी भी भाव का स्वामी क्यों ना हो जाए, तो भी वो योग कारक ही रहेगा। नीड नॉट वरी, क्योंकि उसको केंद्र में त्रिकोण में स्थान मिला है। मार्स को लगन लॉर्ड बन गए तो वो अष्टम में स्थान मिल जाता, नवम में मिल जाता, दशम में वो योग कारक ही रहने थे। और बृहस्पति भागेश हो गए यहाँ पे, भाग्य स्वामी, तो यहाँ पर उनको 12वां भाव भी जाकर चाहे मिला, जो कि एक अच्छा भाव नहीं है, त्रिक भाव है, 6 या दुष्टाना हाउस है, 6, 8 एंड 12, तो भी वो योग कारक है। अब इनके अति दुश्मन कौन से हैं? सबसे पहले शुक्र है मंगल के। तो उन्होंने क्या किया, मंगल देवता को, शुक्र को सॉरी, उन्होंने मार्का हाउसेस दिए। फिर बुध को उन्होंने तीसरा और छठा भाव दे दिया, और शनि को 10वां, और सॉरी यहाँ पे वीनस लिख रहा हूं, एक सेकेंड, मर्करी और सैटर्न एंड सैटर्न। अब यहां पर जो मारक ग्रह हुए, यहां पर हम लिखते हैं योग कारक और यहां पे लिखते हैं मारक। जो योग कारक ग्रह हुए वो आपको पता ही है, मंगल है, फिर जुपिटर है, मून है, मार्स है, और मारक में शुक्र है, फिर मर्करी है, फिर सैटर्न है। नो, Saturn here will be a neutral planet. Okay, another exception. शनि देवता न्यूट्रल प्लैनेट होंगे। क्यों? क्योंकि शनि को केंद्र में भी एक भाव की लॉर्डशिप मिली है, 10th हाउस की। और शनि कैसा रिजल्ट देंगे? शनि जिस घर में बैठ जाएंगे उस घर का रिजल्ट देंगे।
अगर शनि छठे में बैठ गए आके तो रोग शोक कर्जा ऋण बीमारी शत्रु लिटिगेशन बढ़ाएंगे, और अगर भाग्य में बैठ गए तो भाग्य की वृद्धि कर देंगे। न्यूट्रल है ना, न्यूट्रल प्लैनेट है। अगर अच्छे भाव में बैठेगा तो अच्छे रिजल्ट, बुरे भाव में बैठेगा तो बुरे रिजल्ट। सिंपल, वेरी सिंपल। मेष लगन के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? गुड। वृषभ लगन की तरफ चलते हैं, एक एक लगन समझा के क्लियर कर देंगे इसको आज। सर लेकिन इसमें सन मारक नहीं बनेगा ना? सन कौन बोल रहा है ये? सर ज्योति। ज्योति सन क्यों मारक बनेगा? सर मैं वही कह रही थी कि पर सर इसमें योग कारक में सर सन मेंशन नहीं हुआ। ऐसे तो सारे प्लैनेट जो योग कारक थे वो मेंशन ही नहीं हुए। ओके ओके मैं आज एक्सेप्शंस करा रहा हूं आपको। ओके सर। वृषभ लगन, अभी तो और भी एक्सेप्शंस हैं। मेष लगन में शुक्र मारक नहीं होता। क्योंकि एक फर्दर प्रिंसिपल है, द्वि मार्कम ना मार्कम, अर्थात अगर एक ग्रह दो मारक घरों का स्वामी बन जाए तो उसकी मारकता कैंसिल हो जाती है, माइनस माइनस प्लस। लेकिन मैं अभी आपको इस लेवल पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करूंगा। स्टॉप, हैंग इन देयर। हमारे पास बहुत से और प्रिंसिपल हैं जो मैं आपको आने वाले वक्त में सिखाऊंगा, अभी नहीं। मत लिखना इसको, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ओके? जो दोहा है, जो श्लोक है, वो है दुई मार्कम ना मार्कम, अर्थात इफ अ प्लैनेट इज लॉर्ड ऑफ टू मार्का हाउसेस the marka gets cancelled. Okay, but I'm not gonna go there because you people will go crazy then. You people are already crazy, no? So I don't want to make you more crazy. Why you people are crazy? You know, because your guru is crazy. The point is that. Never mind. Nobody understands at time what I say. Or you guys understand? You people are intelligent people. Why can't you understand? You're not intelligent? Sir, we are intelligent because our Guruji is intelligent. Oh, really? Yes, sir. Good. But we can only become intelligent when Vishnuji wants us to be. That is why we are together. Okay, so Vrishab Lagna. Now, टीम की जो दौड़ है, ये पूरी की पूरी जो इस कुंडली की बागडोर है, उसके मेन राजा शुक्रदेव हैं। शुक्रदेव कहते हैं मैं तो पहले अपने फ्रेंड्स को सिक्योर करूंगा। शुक्र के फ्रेंड्स मेनली सैटर्न है यहाँ पर, और मरकरी हैं। तो यहाँ पर वीनस अपनी लॉर्डशिप ले ली, यहाँ पे मरकरी को दे दी, यहाँ पे शनि को दे दी। पहले तो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को यहाँ पे बिठाया। सिंपल। ओके, अब यहाँ पे बिठाने के कारण यहाँ पर शनि तो अति योग कारक हो गया, स्टार प्रिंसिपल। ओके, स्टार प्रिंसिपल, अति योग कारक। अब इन भाई साहब की जो प्लेसमेंट है 2 नंबर लगन में आने की वजह से इनको सूर्य को योग कारक बनाना पड़ा, जबकि इवन दो सूर्य की एनिमिटी है शुक्र के साथ। क्यों? शुक्र जल तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, मित्रता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं पर सूर्य लगन की कुंडली में शुक्र को केंद्र में स्थान मिलता है, मिलता है या त्रिकोण में स्थान मिलता है, मिलता है ना? बताते हैं, रुको। तो इन्होंने एक दूसरे को थोड़ा सपोर्ट कर दिया। तो सन, तो यहां पर जो योग कारक ग्रह हैं उनको लिख लेते हैं एक तरफ, और फिर मारक लिख लेंगे। योग कारक में वीनस राजा है, शुक्राचार्य, फिर सूर्य, फिर बुध और शनि। अब आई दुश्मनी।
दुश्मनी निकालने के लिए उन्होंने सबसे पहले दुश्मनी किसके साथ निकाली? चंद्र के साथ, थर्ड हाउस, मून। मारक हो गया। उसके बाद अपने आप को छठा स्थान देना पड़ा, लेकिन फिर भी योग कारक है। सप्तम भाव मारक ग्रह किसको बना? मार्स, मंगल। और फिर इनकी दुश्मनी है जुपिटर के साथ। वो देव गुरु है या दैत्य गुरु है? जुपिटर। हो गए 7 प्लैनेट कंप्लीट। जुपिटर मारक, अष्टम और एकादश के स्वामी। मंगल मारक, सप्तम और द्वादश के स्वामी। चंद्र मारक, तीसरे भाव के स्वामी। अब यहां पर दूसरा भाव जो एक मारक भाव है, लेकिन यहां पर बुध देवता मारक नहीं हुए, क्योंकि उनको त्रिकोण में भी जगह मिली हुई है। इसलिए यहां पर बुध दूसरे भाव के स्वामी होकर भी मारक नहीं है, क्योंकि कुंडली की गणना इस तरह से हुई है कि जहां पर उन्हें अच्छे घर मिले हैं, उन्हें बुरे घर भी लेने पड़ रहे हैं। उन्हें बुरे घर भी लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ऐसे है, पर वो मारक नहीं होंगे। वृषभ लगन क्लियर? सर यस। एक्सक्यूज मी सर, वन डाउट। सर जब हम हमारा ग्रह देख रहे हैं तो वी हैव टू कंसिडर थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ एंड 12th. 11th also, second also, 7th also, because these are also bad houses. Second and 7th are marka. Remember, I have taught you about Yes, houses. yes sir. 6, 8 and 12 are dushtana, and then there are trik bhavas, 3, 6, 8 and 11 trik bhavas. So the bad houses in a chart are all the houses except Kendra and Trikona, and in Kendra also the 7th house is Marak. Remaining all the houses are struggles of their own sort. So we are just not looking at 6, 8 and 12. We are looking at many things. The second house, the third house, the 6th house, the 7th house, the 8th house, the 11th house, the 12th house. Bad results. Okay, Anshula? हाँ जी सर, थैंक यू. Good. Okay. Now, Mithun Lagna. Is it easy now? Crystal clear? समझ में आ रहा है सबके? Good. मिथुन लग्न, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. मर्करी की दोस्ती दैत्यों के साथ ज्यादा है और दूसरों के साथ, क्योंकि यहाँ पे तो इसका सबके साथ प्यार है, यहाँ पे चंद्र और मंगल से इसकी मित्रता नहीं है। सबसे पहले इन्होंने अपने आप को दिया केंद्र, अपने अति मित्र शुक्र को दिया और शनि को दिया 5 और 9। सबसे पहले त्रिकोण के हिस्सों पे जो है घेरा जमाया जाता है योग कारक ग्रह का, दोस्तों का। जैसे ही त्रिकोण पे इनका डेरा जम जाता है, अपने आप केंद्र के घर ये वो सब अलॉट हो जाते हैं, सिंपल, ऑटोमेटिकली, कुछ नहीं करना होता। अब यहाँ पर उन्होंने अपने आप को 2 केंद्र के हाउस दिए। यहाँ पर उन्होंने बृहस्पति देवता को 7th हाउस दिया, क्योंकि बुध जो है वो इतना लाइक नहीं करते बृहस्पति देवता को, लेकिन इसकी वजह से उन्हें 12वां स्थान भी बना। तो यहाँ पर बुध क्या होंगे, सॉरी बृहस्पति देवता क्या होंगे? टेल मी, टेल मी। न्यूट्रल। और यहाँ पर न्यूट्रल होके उन्हें एक दोष लग सकता है, उस दोष का नाम है केंद्र अधिपति दोष। केंद्र अधिपति दोष का मतलब है कि केंद्र में एक से ज्यादा पोजीशंस, और वो उसी ग्रह को लगता है जो कि न्यूट्रल हो, वो बुध को नहीं लगेगा। ओके, सो इनको भी लग जाएगा, राइट, केंद्र अधिपति दोष। क्या बुध को लगेगा केंद्र अधिपति दोष? नहीं सर। क्यों नहीं लगेगा?
सर क्योंकि वो खुद अपने लगन का स्वामी है वो और सर उसने लग्नेश अपने है। आप को सेंटर में भी इसने रिजर्व कर लिया है 14th से। ओके, इसके ऊपर डिबेटेबल है। देर आर सम पीपल हु सेज कि बुध को भी लगेगा, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूं। ओके, और केंद्र अधिपति दोष का प्रिंसिपल क्या है? अगर एक ग्रह के में केंद्र में एक से ज्यादा लॉर्डशिप हो और वो 6, 8, 12 में बैठा हो, आई रिपीट, अगर एक ग्रह की केंद्र में एक से ज्यादा लॉर्डशिप हो, यहां पर बृहस्पति की एक से ज्यादा लॉर्डशिप है, 7th हाउस एंड 10th हाउस का स्वामी है बृहस्पति, और अगर वो 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए तो वो केंद्र अधिपति दोष है, नहीं तो वो न्यूट्रल है। वो अगर अच्छे घर में बैठेगा अच्छे रिजल्ट दे देगा। न्यूट्रल का मतलब यही होता है, अगर वो अच्छे घर में बैठेगा अच्छे रिजल्ट दे देगा। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन और है, न्यूट्रल होने के बाद बृहस्पति के सबसे वर्स्ट रिजल्ट कहां पे आ सकते हैं आपको पता है? 7th हाउस में। 7th हाउस। बृहस्पति सप्तम भाव में कभी अच्छा नहीं होता, क्योंकि बृहस्पति का दिग्बल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 7th हाउस में 0 हो जाती है। बृहस्पति की डायरेक्शनल स्ट्रेंथ 100% फर्स्ट हाउस में होती है, in the first house. In the 7th house, it does not have directional strength. In anybody's chart, be it Yog Karak, Marak, neutral, Brahaspati in the 7th house is not good. Simple. I'll make it very, very simple for all of you. Sir, any particular reason? I just said it loses its directional strength. Point number 1. Point number 2, 3, 7, 11 are sexual houses, yoni houses, kama houses. And Brahaspati is very much away. See, how does 3, 7, 11 looks like? See, 3, 7, 11 looks like a yoni, uterus. That is why they are kama houses. It is a ulta triangle. The actual mandir triangle is this 159. Exactly opposite to 159 is 3, 7, 11. Brahaspati will do fantastic here. Brahaspati will be worst here. For Brahaspati, 3rd house is the Marana Karana Sthan. Brahaspati dies in the 3rd house. Brahaspati 7th house is pathetic position. Even Aquarius, people say it behaves like Cancer. Yes, it does, but then the detailed concept is, it's not a very good position. I mean, it can give you materialistic gains, but Brahaspati loses many things here. Brahaspati loses many things. Okay. Anyways, we'll have a lot of classes to discuss these things. So you got why Brahaspati is in problem in the 7th house? Yes, sir. Good. All right. So ladies and gentlemen, now the problem here is for Surya Devata. Surya Devata is getting a Marak position. It's not friendly with Buddha, is it? Oh, they are friends. Yes, they are friends. They are friends. But unfortunately, because Mercury was becoming the Lagna Lord, उनको तीसरी पोजीशन देनी पड़ी है। सूर्य के साथ और बृहस्पति के साथ बुध की कोई दुश्मनी नहीं है, इज न्यूट्रल। इसीलिए वो सूर्य के साथ मिलके बुध आदित्य राजयोग बनाता है। परंतु यहाँ पर पोजीशन 3rd मिली है। बहुत से लोग कहेंगे सूर्य यहाँ पर योग कारक है, लेकिन बड़े संघर्ष के बाद रिजल्ट देगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हाँ, इट इज नॉट योग कारक, इट इज मारक। मैंने अपने जीवन में मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, या मतलब अगर किसी ने आपको बड़ा संघर्ष करके रिजल्ट दिया तो वो योग कारक कैसे हो सकता है? वो योग कारक नहीं हो सकता। योग कारक का मतलब है जहां बैठेगा इमीडिएट रिजल्ट देगा, एक्सपैंड करेगा उस चीज। let us be very clear on this. Let's not make dubious statements. Jyotish is a binary language, yes or no. It's not maybe. That's it. Okay, so moon
is another Marak. Oh, Mangal, enemies. No, I just said Mercury, enemies, Moon and Mars. The सारे घर उनको टिका दिए. So Marak will be Sun, Moon, Mars. Yog Karak, Mercury is a Yog Karak. Venus, Saturn. Saturn is star here. Why star? Is it star? No, no star. Simple. It's not. It just has only one. Only one house. Okay. And what else is Yog Karak here? Tell me. None. Jupiter is what? Marak or Yog Karak? Neutral. Neutral. You can say neutral. Okay, but I must tell you one thing. 99.99% Brihaspati here behaves like Marak. Marak. Why? Because इसको जो 7th house की लॉर्डशिप है ना, वो अच्छी लॉर्डशिप नहीं है. बृहस्पति अनकंफर्टेबल हो गए काम त्रिकोण में आके. बृहस्पति कहते हैं मैं ठीक है, मैं 10वें घर में ठीक था. आप न्यूट्रल कह सकते हो. न्यूट्रल कहने से बचाव हो जाता है थोड़ा सा. अगर यहाँ पे बैठे हो बृहस्पति लगन में, 10th लॉर्ड होके लगन में बैठे हैं, बंदा सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर होगा, शानदार, अच्छी काम कर सकता है जीवन में, टीचर ट्रेनर हो सकता है. और हो सकता है उसकी मैरिड लाइफ खराब हो. ओके, we'll discuss all these things when I'll teach you predictions. Don't worry. Can we move on to the another lagna? Yes, sir. This is clear, right? Yes, sir. Clear or crystal clear? Okay. Raja Ramji's lagna. I don't know why I like this lagna so much, and I don't know why these people struggle in their life so much. No idea. Yes, sir. Oh yes, sir. 4, 5, 6, 7. ये किसने बोला था? Yes, sir. Sir, Jyoti. आपका कर्क लगन है. Yes, sir. That's why. Due to they are too much emotional. Mine also, sir. They are not emotional, they are emotional. Okay, so there's difference between emotional and emotional. No, emotional is more sentimental as well. All right, and emotional is rational. Oh, you'll not understand. I'm just joking. Anyways, Karka Lagna. Oh, it's a Deva Lagna. It's not a Daitya Lagna. So Devas will give preference to Devas, not the Daityas. Moona, Chandra, Mangala, and Gurudeva, Brihaspati. सारा डिसाइड हो गया. उसके बाद कौन मारक है कौन नहीं है, त्रिकोण में बिठाओ और देख लो. राइट. अब यहां पर मंगल देवता स्टार हो गए. स्टार क्योंकि इनके पास अति योग कारक, नॉट जस्ट योग कारक, अति योग कारक. तो यहाँ पर योग कारक की लिस्ट बनाते हुए सबसे ऊंची श्रेणी में हम यहाँ पर चंद्रमा लग्नेश को बिठाएंगे, फिर मंगल को बिठाएंगे, फिर बिठाएंगे बृहस्पति देवता को. बिठा दें. ओके. लेकिन यहाँ पर सूर्य देवता मारक हो गए. क्यों? एक तो सूर्य देवता को सेकंड हाउस मिल गया, ऊपर से चाहे वो सेम टीम में थे, they're in the same team, परंतु इनके तत्व सेम नहीं थे. जल तत्व, अग्नि तत्व. एक जज्बाती आदमी की लाइफ में किसी को जला देने की हिम्मत नहीं होती, वो जला ही नहीं सकता किसी को. और बेचारे की ईगो भी होगी ना, तो जिंदगी ऐसे कटती है कि ईगो भी पूरी फुलफिल नहीं होती, झुकना पड़ता रहता है और अंदर ही अंदर जलते रहना, सड़ते रहना. नहीं, ईगो फुलफिलमेंट हो ही नहीं पाती, फिर बंदा गिव अप कर देता है, मैच्योर हो जाता है, नरिश करता रहता है दूसरे को सारी जिंदगी.
और सामने से नरिशमेंट ही नहीं मिलती। एनीवेज, आशीष। सर मंगल भी तो फायर एलिमेंट है, जैसे सन फायर एलिमेंट। सर वही मैं पूछना चाह रही थी। जी, लेकिन मंगल जो है फायर एलिमेंट तो है, लेकिन उसको स्थान त्रिकोण में आ गया ना, सर वही दुष्टाना में नहीं आया ना, सर उसको उसके साथ क्यों दोस्ती निभाई उन्होंने चंद्रमा ने, यही तो बात है ना कि क्योंकि वो फायर। त्रिकोण में आ गया ना। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सृष्टि को समझिए थोड़ा सा। हर एक ग्रह का एक सोर्स होता है और एक कैरियर होता है। अब ध्यान से समझना, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखता हूं तत्व को। यहाँ पे लिखते हैं अग्नि तत्व, ठीक है? यहाँ पे लिखते हैं जल तत्व, फिर वायु और आकाश, ठीक है? आपको कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सूर्य इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मंगल इज द कैरियर। मार्स इज द कैरियर ऑफ दैट एनर्जी। Moon is the source of the energy and Venus is the carrier. Vayu, Shani is the source of the energy, Rahu is the carrier. And Akash, we have only one tattva, which is Jupiter. Fine. Yes, sir. Now, out of the Surya and Mangal, the fire is coming from the Surya. Mangal is only taking that fire and giving to someone. So who is the culprit? Surya or Mangal? सूर्य। सूर्य। Out of the Chandra and Venus, Moon is giving the jala, but Venus is only carrying that jala. Sperm जो क्या है? Sperm क्या है? Sperm शुक्र है, शुक्र अणु, लेकिन वो तत्व क्या है? चंद्र। चंद्र का तत्व लिक्विड फॉर्म में वो आया, लिक्विडिटी उसे चंद्र से मिली, मन से मिली। मन में उथल पुथल होती है तो स्पर्म, आपकी कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी कहां से शुरू होती है? मन से। चंद्र सोर्स बनता है, लेकिन उसका कैरियर कौन है? शुक्र, शुक्राणु। तो कल्प्रिट कौन हुआ? चंद्र के शुक्र? मून। चंद्र। आप समझ रहे हैं बेटा मेरी बात? यस सर। यस सर। डीप कॉन्सेप्ट नीड टू गेट इनटू। और जब भी अमावस योग बनेगा, जब भी एक्लिप्स बनेगा, कोई भी ग्रहण बनेगा, वो मंगल की वजह से नहीं बनेगा, वो सूर्य, चंद्रमा और धरती एक लाइन में होंगे तो बनेगा। सूर्य को ग्रहण लगाने वाले चंद्र और चंद्र को ग्रहण लगाने वाले सूर्य। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। शुक्र अपने आप में आपके शरीर को नहीं छोड़ना चाहता। शुक्र अपने आप को समा के रखता है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। आपका मन उसको कहता है। तो सोर्स जो पावर है वो ज्यादा डेंजरस है एज कंपेयर टू द कैरियर। ठीक है सर। लोग शुक्र को गाली देते हैं कि तुम्हारा शुक्र खराब है, लेकिन कोई चंद्र को कोई कुछ नहीं कहता। शुक्र के पीछे है तो चंद्र। यस, नो, मे बी। यस यस। यस सर। क्लियर है? यस सर। आगे आगे बढ़े। यस सर। फैंटास्टिक, गुड। मजा आ रहा है? यस सर। गुड। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। चंद्र इधर उन्होंने, या कश्यप? सर ऐसा कुछ है क्या कि मंगल देवता चंद्र देवता को अपनी माता कंसिडर करते हैं, ऐसा कुछ है? मंगल देवता हाँ। चंद्र देवता को माता कंसिडर कर नहीं सकते, क्योंकि चंद्र के पास फेमिनाइन एनर्जी तो है, लेकिन चंद्र मेल है। ओके ओके, अंडरस्टूड, फाइन फाइन। ओके। हम सब कुंडली में सूर्य को पिता और चंद्र को माता की एनर्जी मानते हैं। एनर्जी, एनर्जी।
सूर्य को शिव जी और चंद्र को मां पार्वती की एनर्जी, वर्ड इज यूज्ड एज एनर्जी। जब चंद्रमा ने बृहस्पति देवता की पत्नी से नाजायज संबंध बना लिए थे तो सभी ग्रहों ने, सभी देवताओं ने उनको पनिश किया तो अमावस्या हो गई। अमावस्या होगी तो वो कहां भागे रेस्क्यू के लिए? भोले बाबा के पास। भोले बाबा ने उनको रेस्क्यू करके अपने मस्तक पे बिठा लिया और उनकी जान बचाई, और बृहस्पति देवता को कंसोल करके उनकी पत्नी को उनको वापस किया। देयर आर वेरी मच स्टोरी जो आने वाले वक्त में आपको, जब नक्षत्र करेंगे ना, ये सारी स्टोरीज आपको समझाऊंगा, एक एक स्टोरी समझाएंगे आपको डीप थ्योरीज समझ में आएंगी कि अरे दिस इज हाउ ह्यूमन लाइफ इज वर्किंग। ओके, सो यहाँ पर चंद्र, मंगल और बृहस्पति को योग कारकता दी, सूर्य देवता और बुध देवता को मारक बनाया, क्योंकि बुध यहाँ पर खराब हाउसेस के मालिक बने। अब चंद्र को पता है कि उसका कैरियर कौन है कैरियर? वीनस। वीनस। तो उसको क्या बना दिया? न्यूट्रल। उसको मारक नहीं बनाया, उसको न्यूट्रल बना दिया, उसको 4th हाउस में जगह दे दी, और उसकी वजह से एकादश भाव में जगह मिल गई। और शनि की तो बिल्कुल नहीं बनती चंद्र के साथ। शनि कहता है रुको रुको रुको, मन कहता है भागो भागो भागो, मन कहता है मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, शनि कहता है उतना ही मिलेगा जितना तेरे भाग्य में लिखा, जो तेरी औकात है, इससे ज्यादा नहीं मैं देने दूंगा किसी को। वो बोला अच्छा, जब मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा एक कुंडली का, तो मैं शनिदेव को क्या बनाऊंगा? मारक। मारक हाउस। करो अपना जो काम करना है। 7th और 8th लॉर्ड बना दिया बेचारे। पत्नी के साथ या पति के साथ बंध जाओ, आपकी इंडिपेंडेंस खत्म, है ना? शादी होते ही क्या होता है, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, क्या खाओगे, कहाँ बैठे हो, इतना टाइम फोन पे किसके साथ? नो, ऑल दैट, यू नो, रिस्ट्रिक्शन। 8th हाउस, हिडन एनिमीज, लॉन्जिविटी का खतरा, आयु कम हो जाती है, आयु। लेकिन लड्डू जो है वो थाली में बड़ा ही लगता है दूसरे की, जो खाए वो भी पछताए, और जो ना खाए वो तो बहुत ही पछताए। हाँ, जो खा लेता है उसको बच्चे सहारा दे देते थोड़ा बहुत, जलेबियां और रसगुल्ले। एनीवेज, ओके, तो आते हैं सिंह लगन पे। सिंह लगन सूर्य देवता का 5 नंबर, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 और 4। सूर्य देवता अपनी मित्रता निभाई, पहले तो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाया, और फिर बृहस्पति देवता और मंगल देवता को त्रिकोण दिया। सबसे पहले त्रिकोणों पे कब्जा 159 पे। चंद्र को मारक बनाया, बोला चंद्र तूने मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर में मारक बनाया, मैं भी तुझे अपनी प्राइम मिनिस्ट्री में मारक बनाऊं। 12वां भाव दे दिया चंद्र देवता को, मारक। फिर शुक्र, भाई चंद्र को कहता है कि देख ऐसा है कि ठीक है तेरी गलती है, तू सोर्स है, लेकिन जो शुक्र है ना, ये तो बेचारा तेरे ऊपर निर्भर करता है, इसका एक्चुअल में कोई कसूर नहीं है। मन खराब शुक्र खराब, मन अच्छा शुक्र अच्छा, और प्रारब्ध के कर्म। तो इस सर्कमस्टांसेस में मैं तेरे को न्यूट्रल देता हूँ, चल तू जहां बैठेगा उस हिसाब से रिजल्ट दे देना।
क्योंकि मेरी दुश्मनी चंद्र के साथ है, सोर्स के साथ, कैरियर के साथ नहीं। और शनि देवता के साथ तो हमारी मित्रता ही नहीं है। सूर्य देवता अति दुश्मन, बाप बेटा मारक हो गए सूर्य देवता, नो शनि देवता सैटर्न। अब यहां पर एक एक्सेप्शन, नंबर 6, योग कारक में सन, मार्स जुपिटर। एंड जुपिटर एंड मर्करी। मर्करी के साथ दोस्ती निभा दी उन्होंने। क्यों? क्योंकि मर्करी यहां पर दोनों धन भावों के स्वामी हैं, सेकंड एंड 11th। सेकंड एंड 11th। वेल्थ जो है ना किसी की कुंडली में, वो द्वितीय और एकादश भाव से देखा जाता है, सेकंड एंड 11th। तो ये एक्सेप्शन जो है सिर्फ 2 लग्नों में है, 5 नंबर लगन में और 11 नंबर लगन में। 5 नंबर में मर्करी और 11 में जुपिटर दोनों धन भावों के स्वामी होंगे ऑलवेज, और वो योग कारक होंगे। एक्सेप्शन नंबर 6, बेनिफिट ऑफ डाउट। यस, नो, मे बी। सर इसमें मार्स अति युग कारक होगा। Absolutely, star. Mars is a star. अति योग कारक, स्टार प्रिंसिपल, योग कारक, अति योग कारक, मारक, न्यूट्रल। उस दिन समझ में आता है ये सब, अपना दिमाग खर्चा किया, दूसरे लेक्चर में समझ आया। सर तो धन भाव के अगर लॉर्डशिप रहे तो वो योग कारक में आएगी? अगर दोनों धन भाव का स्वामी हो तो, एक नहीं। अच्छा, तो दोनों का रहा तो योग कारक में आएगा, अगर हाँ। उसमें से एक का रहेगा यार तो क्या नहीं है, आएगा। आप देखो ना, मैं आपको बताता हूँ क्या डिफरेंस है दोनों और एक में होने के। जो द्वितीय भाव है वो फिक्स्ड एसेट्स है। आपका जन्म हुआ राजघराने में, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पैसा, आगे पीछे नौकर, लेकिन आपके जेब में 1 रुपया नहीं। आपका बाप इतना गलत बंदा है कि वो आपको 500 रुपया दे के राजी नहीं है। जहां जा रहे हो गाड़ी में ड्राइवर, शॉपिंग करने जाओ, क्या किससे करो शॉपिंग? आपका 11th हाउस खराब है। दैट मीन्स आपके पास लिक्विडिटी नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े घर, प्रॉपर्टी, जमीनें पड़ी होती हैं, बिकती नहीं है, डेड प्रॉपर्टीज, और वो कैश के लिए क्रंच में फंसे हुए हैं। अब मान लो आपका 11th लॉर्ड बड़ा अच्छा है, योग कारक बना देते अगर हम, आपके पास बहुत कैश होता, बहुत कैश होता, लेकिन आपका सारा कैश आता और उड़ जाता। सारी जिंदगी कहते जी अपने बड़े पैसे कमाए, लेकिन बना कुछ नहीं पाए। अगर कोई भी ग्रह दोनों धन भावों में से एक का स्वामी बन गया, उसको योग कारक नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें क्या होगा, या तो पैसा आएगा आएगा आएगा, वो फिक्स एसेट नहीं बना पाएगा, और अगर फिक्स्ड एसेट बहुत सारे हैं, कैश नहीं होगा, तो ऐसे फिक्स एसेट्स को क्या करना। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? एक योग कारक तभी योग कारक होगा जब उसके पास लिक्विडिटी भी हो और फिक्स्ड एसेट्स भी हो। Am I making you some sense, ladies and gentlemen? Yes, sir. Good. आगे बढ़ते हैं, अगर आपकी आज्ञा हो, सबकी आज्ञा है, Yes, sir. आशीर्वाद भी है। चलो, आशीर्वाद तो गणपति बप्पा का है जो ज्योतिष देते हैं। 6 नंबर, 7 नंबर,
8 नंबर, 9, 10, 11, 12, 1, द्वितीय, तृतीय, 4 और 5। मर्करी न्यूट्रल गाय, फटाफट से अपनी पोजीशन ली, प्राइम मिनिस्टर बने। शनि देवता को दिया 5th हाउस और शुक्र देवता को दिया 9th हाउस। यहां से ही सभी योग कारक निकल आएंगे। और इसमें वो कहते हैं मैं तो अति योग कारक बन सकता हूं, केंद्र अधिपति दोष भी लगेगा कुछ लोगों के दिमाग से, मेरे दिमाग से नहीं, क्योंकि वो लग्नेश भी हैं, केंद्र के स्वामी भी हैं, त्रिकोण के स्वामी भी हैं, बुध देवता। 159, 147, 10 सभी घरों के मालिक में से कॉमन भाव लगन के स्वामी होना, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट होना कोई छोटी बात नहीं है। उनको इतनी जल्दी दोष नहीं लग सकते बुध देवता को। अब उन्होंने यहां पर सबसे ज्यादा दुश्मनी निभाई चंद्रमा से। सबसे खराब भाव होता है 11th भाव, सबसे खराब भाव, क्योंकि अगर 11th किसी का बिगड़ गया और वो खराब हुआ तो जब पैसे ही नहीं है जेब में तो क्या जीवन, गेन्स ही नहीं है, होप्स, विशेस, डिजायर, समाज में इज्जत ही नहीं है। 11th हाउस, मोबाइल ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, इंटरनेट ही नहीं है, फकीरी का जीवन है, फकीरपन। तो यहां पर उनको चंद्रमा को खराब पोजीशन दे दी, मारक बना दिया, मंगल को मारक बना दिया, दुश्मनी है ना मंगल के साथ। मंगल को मारक बना दिया, चंद्रमा को मारक बना दिया। आओ जरा यहां पर लिख लें जरा साइड पे। तो मारक ग्रहों में सबसे पहले जो मारक हुए वो चंद्र हुए, फिर मंगल हुए, और कौन मारक हुए? सूर्य मारक हो। ना चाहते हुए भी उनको सूर्य को मारक बनाना पड़ा और द्वादश भाव के स्वामी बने, गणना की वजह से, कैलकुलेशन। और इनकी सॉरी जुपिटर ऑल्सो मारक सर? एब्सोल्युटली, जुपिटर इज ऑल्सो मारक। आप लोग कहेंगे न्यूट्रल है, केंद्र अधिपति दोष तभी लगेगा जब 6, 8, 12 में बृहस्पति बैठेगा। ठीक है यार, स्टेटमेंट्स आर फाइन। मैंने अपने जीवन में कन्या लगन की कुंडली में बृहस्पति की दशा कभी अच्छी नहीं देखी। बहुत संघर्ष के बाद भी कुछ मिला तो क्या मिला, ये कोई योग कारकता नहीं। और योग कारक में खुद बुध देवता योग कारक हैं, शनि देवता, सैटर्न इज योग कारक, वीनस इज योग कारक। सिंपल। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सर इसमें वीनस सेकंड हाउस के भी है मारक, तो नहीं लगेगा सर उनको मारक बिल्कुल नहीं दोष? लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि उनको भाग्य का स्वामित्व भी मिला है। ये मेरी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। आगे बढ़ते हैं। सर अभी कन्या लगन में जैसे आपने हाँ। बोला गुरु मारक हो गया है, हम्म, राइट? तो इसका ये भी एक रीजन हो सकता है ना कि बुध देवता ने शुक्र को अपना गुरु माना है, क्योंकि उनको नवम भाव दिया है इसके लिए। बिल्कुल। तो ऑटोमेटिकली अगर शुक्राचार्य उनके गुरु हैं तो फिर देव गुरु तो उनके गुरु नहीं बन सकते हैं, तो मारक बन सकते हैं। एक प्रॉब्लम और भी है वहां पे मारकता की। जो चंद्र है ना, वो बुध के बेटे हैं। करेक्ट। हाँ, और चंद्रमा ने किनकी बीवी के साथ प्रॉब्लम क्रिएट किया था? जुपिटर। दोस्ती नहीं होगी ना। रिश्ता समझ रहे हो कहां से आ रहा है? राइट राइट।
आपका जो सोचा बिल्कुल सही सोचा आपने, एक्सीलेंट। लेकिन वो एनिमिटी जो है, दुश्मनी थोड़ी पुरानी भी है, हाँ, वो रिलेशनशिप से आई है। रिलेशनशिप से आई है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? गुरुजी नहीं एक सर, डाउट है, जी जी पूछिए। ये जो मून जुपिटर कंजंक्शन होता है उसको हम योग कारक कैसे कह सकते हैं? अब ऐसा है ना कि जब भोले बाबा बीच में पड़ गए और उन्होंने फैसला करवा दिया और क्षमा करवा दिया, चंद्र को वापस रीइंस्टेट करवा दिया, उनकी बीवी को वापस कर दिया, तो अब दोनों बुद्धि और विजडम एक साथ बैठेंगे, राइट। अब गज केसरी योग में चंद्र और बृहस्पति है, राइट। चंद्र क्या है? मन। और बृहस्पति क्या है? गुरु। अब चंद्र ने सरेंडर कर दिया, गुरु ऐसे है ना, अगर उनके सामने कोई सरेंडर कर देगा ना, उसको माफ कर देंगे। वो शनि को भी माफ कर देते, राहु को भी कर देते, केतु को भी कर देते। मंगल हो, मंगलीक हो, बंदा बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए वो भी ठीक हो गया। गुरु है ना, वो माफ करेगा ना, गुरु माफ कर देगा। वो गज केसरी योग है, गजा मन है, केसरी। तो इसलिए एक शेर और एक हाथी की स्टोरी है उसके पीछे, बहुत जबरदस्त। आपको समझ में आएगा। गज हाथी को कहा जाता है, केसरी शेर को कहा जाता है। और जिस तरह से आप अपने मन में सोच रहे हो ना गज केसरी योग फलित होता है, वैसे नहीं होता है। Okay, we will tell you this in the nakshatra. I have a video on Gaj Kesari Yoga, 1 hour video on YouTube. Go see, you'll get to know everything. तुला लगन पे आ जाए, इजाजत है? कोई इजाजत ही नहीं देता, मैं अपने आप ही हाँ कर देता हूँ। अगर आपने अगली बार इजाजत नहीं दी तो हम क्लास ही खत्म यहाँ पे, बस उसके बाद अपने आप ढूंढना सारे योग कारक। ओके, सीमा जी से इजाजत लेंगे हम अगली बार, वो सबसे सीनियर है। ओके, 7 नंबर में शुक्र देवता। शुक्र देवता दैत्य लगन बन गया, और दैत्य लगन बनते ही उसने सबसे पहले शनि देव को सिक्योर किया और अपने बुध देव को सिक्योर किया। फटाफट से अपनी त्रिकोण में पोजीशन संभालो भाई मेरे दोस्तों, ये जगह बार बार नहीं मिलती है, ये जगह आपको मेरे राज्य में ही मिलेगी, क्योंकि मैं राजा हूं। अब शनि यहां पर अति योग कारक हो गए, स्टार स्टार, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनको 2 घर मिल गए, अति योग कारक। हाँ, स्टार स्टार, सैटर्न, शुक्र एंड मर्करी। अब शुक्र कहते हो, देखो मेरी एग्जिस्टेंस तो चंद्र देवता से है, चंद्र मेरे सोर्स हैं, तो मुझे चंद्र को भी योग कारक बनाना पड़ेगा, चतुर्थ भाव का स्वामी बनाकर, चतुर्थ का दशम भाव का। मारक में उनकी दुश्मनी मंगल के साथ, फिर बृहस्पति के साथ बिल्कुल नहीं बनती, सूर्य के साथ हो गए कंप्लीट मारक और योग कारक। क्लियर है? सिंपल, गुड। सीमा जी इजाजत है वृश्चिक लगन के लिए? ओके सर क्वेश्चन है इसमें, हाँ हाँ तुला लग्न में तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी गुरुदेव है, हाँ तो ये केस में वो मारक हुए, जी। राइट। तो अभी ये तुला लग्न में अगर समझो गुरुदेव की दृष्टि कोई भी ग्रह पे पड़ती है, हाँ तो वहां पे भी वो अपना पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे? मतलब वो माफ करेंगे वो सब चीजों को, कि वहां पे वो अपनी मारकता ही दिखाएंगे? देखो, गुरु की जो प्रवृत्ति है ना, वो हमेशा माफ करने वाली है। ओके। 10 11 लिखना था यहाँ पे, 1 सेकेंड। तो
गुरु जहाँ बैठते हैं अगर वो मारक हो तो वो खराबी करते हैं, और जहाँ देखते हैं हमेशा वहां पे भलाई करते हैं, चाहे मारक हो चाहे योग कारक हो। ओके। गुरु की दृष्टि अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हाँ, क्योंकि एक मुझे बात हर पूछता बार हूँ, एक बात पूछता हूँ, अगर मैं बीमार भी होऊंगा और मैं कंफर्टेबल भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे आप वहां दिखोगे तो मैं तो आपको ब्लेस ही करूंगा ना। वो मेरे हालात मुझे पता है, सही। लेकिन आपको तो मैं हमेशा यही कहूंगा, विजयी भव। ओके, गुड क्वेश्चन। वृश्चिक लगन, देव लगना, फटाफट से मंगल देवता ने कहा देव गुरु बृहस्पति जाइए पंचम भाव संभालिए, और अब यहाँ पर चंद्रमा को, मंगल देवता को एक्सेप्शन में नवम भाव देना पड़ा। क्यों देना पड़ा? क्यों देना पड़ा? कि चंद्र ने भी दिया था उनको योग कारक। एग्जैक्टली, क्योंकि चंद्र ने भी उनको दिया था। एक्सचेंज याद रखते हैं सब लगन, राइट। और मंगल देवता यहाँ पर अति योग कारक नहीं, केवल लग्नेश हुए, और यहाँ पर उन्होंने अपने सोर्स सूर्य को भी योग कारक बनाया, क्योंकि मंगल का सोर्स है सूर्य। यहाँ पर हम लिस्ट लगाते हैं योग कारक की और फिर मारक की, और यहाँ पर मंगल देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता और चंद्र देवता, ये हुए योग कारक। मारक ग्रहों में कौन आए? कौन आए? वीनस वीनस अति मारक, उसके बाद न्यूट्रल, सैटर्न न्यूट्रल, मरकरी अति मारक। और सैटर्न को न्यूट्रल क्यों किया भैया? फोर्थ Anyone? हाउस लॉर्डशिप। फोर्थ हाउस लॉर्डशिप तो दिया, गुड, लेकिन कोई और रीजन दिमाग में नजर आता है? सर एरीज साइन में उसने 10th हाउस का लॉर्ड बनाया था ना सैटर्न को। हाँ, which is good। और कोई रीजन आपको पता है? बिकॉज मंगल सर सैटर्न ने भी अपने राशि में मास न्यूट्रल थे। हाँ जी, सब बिकॉज सैटर्न ने भी अपने इसमें मास को अच्छी जगह दिया था इसलिए। yes, कुंभ में yes। But one more concept I'll teach you when I'll teach you nakshatras. Somehow Mars gets exalted in the Rashi of Shani. Yes. But that is a very deep concept, not right now. Then you will ask, oh sir, then Mars is also debilitated in the Chandra Rashi, but Chandra Rashi is 9th here. How, sir? So my answer will be, wait, sir. सर ये एक रीजन हो सकता है क्या कि मार्स इज एनर्जी, राइट, और एनर्जी तभी यूजफुल होगी जब भी कोई उसको इम्प्लीमेंट करेगा। मतलब शनि इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी चीज को, काम करवाते हैं, कर्म करवाते हैं। शनि कोई कर्म नहीं करवाते, शनि सिर्फ संघर्ष देते हैं। शनि का काम नहीं है कर्म करवाना, शनि आपको संघर्ष देगा, लेबोरियस जॉब करवाएगा, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग दे देगा। अब आप कर्म करते हो कि नहीं करते हो उसमें, शनि को समझना बहुत डीप है। शनि इज वन ऑफ द बेस्ट प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड, अगर आप उनको समझ सको। एनीवेज, गुड थॉट्स, गुड थिंकिंग। धनु 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फटाफट से बृहस्पति देवता कहते हैं मंगल देवता जाओ 5th हाउस। सूर्य आप भागो फटाफट 9th हाउस की तरफ, ले लो फटाफट से जगह ले लो जाके आप। और यहां पर
योग कारक में बृहस्पति देवता, मंगल देवता, सूर्य देवता। न्यूट्रल प्लैनेट में मर्करी, लेकिन एक तरह से मारकता की तरफ बढ़ता हुआ। ओके, और अति मारक में शनि, शुक्र। दैट्स इट। एक ग्रह रह गया, और मारक कौन सा है? चंद्र। चंद्रमा। अब चंद्र यहाँ पर मारक क्यों हो गए? 8th हाउस के लॉर्ड हो गए और 8th हाउस में मून का मरण कारण स्थान रहता है, इसलिए। जी, 8th हाउस के स्वामी हो गए गणना की वजह से, कैलकुलेशन, क्योंकि बेचारों को मिला ही 8th हाउस, अदरवाइज कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन एक दुश्मनी है, इंटेंशन। गुरु कहते हैं कि ये मन ही जो है ऐसा, जो कहीं ना कहीं पर आपको मेरे से दूर लेके जाता है और मेरे नजदीक भी लाता है। और जब तक ये मन अकल्ट साइंसेस, हिडन सीक्रेट्स को जाकर नहीं खगालेगा, इसको गुरु की महिमा का पता नहीं लगेगा। सच बोलना, आप गुरु गुरु बहुत सुनते थे, जानते थे, गुरु का असली मतलब पता लगेगा जब 6 महीने मेरे से ज्योतिष सीख जाओगे। आपको रियलाइज होगा कि गुरु की कितनी जरूरत है। अभी छोटी छोटी बातें पूछते हो, जब डिफिकल्ट हॉरोस्कोप्स, डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आएंगी, करोगे ना मैसेज, गुरु जी ये वाला योग बन रहा है, बंदा बहुत सफर कर रहा है, कैसे? आज तक भी मैं अपने गुरुओं से मैसेज करके छोटी छोटी हेल्प कभी कभी लेता हूँ। आज तक उनके लिए मैं बच्चा हूँ, और वो अपने गुरुओं के लिए बच्चे हैं। सारी जिंदगी रहेंगे, होल लाइफ। चाहे मैं, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरी फैन फॉलोइंग, फॉलोअर मेरे उनसे कहीं ज्यादा हो जाए, लेकिन फिर भी मैं उनका बच्चा हूं, ऑलवेज, एंड विल रिमेन होल लाइफ and in the next birth also. I pray every day. गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देवो महेश्वरो, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओके, आगे बढ़ते हैं। सर यहाँ न्यूट्रल हो गया ना मरकरी? हाँ, मरकरी न्यूट्रल है, लेकिन वो मारकता की तरह ही बिहेव करता है तो न्यूट्रल, बट वो सप्तम भाव है ना, सप्तम भाव का स्वामी जो है वो अच्छा नहीं होता। मकर लगन किसी का है? एनीवन हु हैज मकर लग्न? No, sir. Right now, I don't have Makar Lagna. किसी का मकर लगन नहीं? सर मेरा है। ओह, चाय पी लिया आपने? नहीं सर मैं तो उठते सार आपका लेक्चर ही सुन रही हूँ। क्या टाइम हुआ उधर? 4:30 बजे, 5 बजे? नहीं, अब तो 6:30 हो रहे हैं सर। वो 5:30 बजे से उठ के बैठे हो आप? हाँ जी सर। धन्य हैं आप। सर ये लेक्चर इतना अच्छा है कि कहीं और, मतलब चाय बनाने का भी दिल नहीं कर रहा सर, पहले सुन लो फिर बनाऊंगी। ठीक है, थोड़ी इधर भी भेज देना। ठीक है सर। ओके, शनि देवता लगन में यहाँ पर कहते हैं शुक्र देव को कि इधर, और बुध देव को जाके फटाफट से 159 ले लो, मैं दैत्य लगन हूं, और मैं यहाँ पर अपने गुरु शुक्राचार्य को अति योग कारक बनाऊंगा, केंद्र में भी स्थान दूंगा और त्रिकोण में भी। सो वीनस इज अ प्लस स्टार हियर। शुक्र, ओके, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, फिर बुध देवता और खुद योग कारक हुए। अब मार्स को, अगर मार्स ने उनके साथ अच्छा बिहेव किया था तो इन्होंने भी उसके साथ अच्छा बिहेव कर दिया, भाई तू न्यूट्रल है मेरे टीम में। और मारक किस किस को बना दिया? देव गुरु बृहस्पति को बना दिया, चंद्र को बना दिया और सूर्य को बना दिया। चलो भैया, 7वां 8वां 12वां और तीसरा घर संभालो। चलो, सारा दुख दर्द, एक्सीडेंट्स, प्रॉब्लम, लॉसेस सारा दिन
सारी जिंदगी इस इंसान के लिए वही देखते रहना। हम देखेंगे भाग्य, बच्चे, हमारी ब्लेसिंग से होगा सब कुछ। समझ रहे हो आप मेरी बात? बड़ा सिंपल है, कोई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ज्योतिष इज वेरी सिंपल इफ यू गिव योर हार्ट एंड सोल टू इट। अरे तो लाइन डिलीट हो जाती है ना। राहु देव कह रहे हैं मेरे को तो कोई मेरा नाम ही नहीं दिया आपने, ना राहु का ना केतु का, इसीलिए मैं बार बार आपकी लाइनें डिलीट करता हूँ। अभी देखो जरा, टेंशन मत लो। नहीं, चलो कोई नहीं, उनकी बारी भी आएगी। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शनि देव कहते बुध देव जी जाओ फटाफट जरा 9th हाउस में। शुक्र देव जी आप भी जाओ, आप तो मेरे गुरु हैं, मैं आपको तो हर अपने लगन की कुंडली में प्लस प्लस ही दूंगा, प्लस। अब शनि देव खुद प्लस, राइट? यहाँ पर बुध आने हैं, सॉरी, यहाँ पर बुध आना था। सर बस शनि देव ने अपने आप को दुष्टाना हाउस क्यों दिया? बेचारों को मिल गया, बेचारों को मिल गया नंबर की वजह से। 11 के बाद 12 ही आता है ना, यस सर। और 11 से पहले 10 आता है। हम्म। शनिदेव ना बड़े चालाक हैं। शनिदेव कहते कि भाई मोक्ष का घर कौन सा है? 12th हाउस ना। यस सर। वो कहता मेरी परमिशन के बिना कोई मोक्ष कैसे ले जाएगा? इधर आओ, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, सारे कर्म जीरो है ना, किसी से कोई लेन देन तो नहीं है आपका, कोई कर्म सेटल होने वाला तो नहीं रहा। तो विष्णु जी भी कहते हैं, जैसे आपको लास्ट डे रोल नंबर मिलता है ना एग्जाम में बैठने के लिए, विष्णु जी क्या कहते हैं, ओए तेरे को मोक्ष चाहिए, चल पहले शनि से साइन करवा के ला, एनओसी लेकर आ, अकाउंट से, लाइब्रेरी से। तो शनि देव 12वें भाव के स्वामी होकर अति योग कारक बनते हैं, और 12वें भाव के नेचुरल सिग्निफिकेटर भी हैं, क्योंकि आपके रिपोर्ट कार्ड पे वो फाइनल साइन करके देते हैं कि अब आप विष्णु जी के पास जाओ, आपको मैं मोक्ष देता हूं, क्योंकि आपके प्रारब्ध में सारे कर्म जीरो हो गए, आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है। आपको अब आपको दोबारा शारीरिक रूप में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। तो वो फाइनल सिग्नेचर तो शनि नहीं करने हैं ना। 12वां भाव, समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। और यहाँ पर बृहस्पति देवता अति योग कारक हो गए। क्यों? क्योंकि उनको प्रिंसिपल नंबर 6 अति योग कारक में दोनों धन भावों का स्वामी बनने का स्थान प्राप्त हुआ। यहाँ पर शनि थोड़े से चालाक है। शनि कहते हैं कि हम देव गुरु और दैत्य गुरु दोनों को साथ साथ लेके क्यों ना चला जाए, क्योंकि 11th हाउस मूल त्रिकोण है ना। 11th हाउस में पैसा है, और पैसा बृहस्पति और शुक्र दोनों की वजह से ही मेन मिलेगा। तो उन्होंने शुक्राचार्य को भी स्टार प्लस कर दिया और बृहस्पति देवता को भी स्टार स्टार दे दिए। सबसे बेस्ट लगन है, तभी मैं कहता हूँ एक्वेरियस इज माय फेवरेट लगन। यहाँ पर दोनों गुरुओं को साथ लेके चलते शनि देवता। और इसको इसको मारक किस किस को किया शनि ने? शनि कहता है आप देख तो मैं किस किस को मारक करता हूँ। सबसे पहले तो मैं सूर्य को मारक करूंगा, और मैं चंद्र को मारक करूंगा। मार्स न्यूट्रल है, यही एक लगन है जिसमें 2 मारक है, बाकी 5 ग्रह या तो योग कारक है या न्यूट्रल है। एक स्कॉर्पियो लगन भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा ही है, थोड़ा रिसर्च करना। लास्ट लगन मीन लगन,
कलयुग में होता ही नहीं। 100 कुंडलियां देखो, उसमें से एक कुंडली मीन लगन की आती है, बाकी सारे ही बुध के लगन, शनि के लगन, शुक्र के लगन। कलयुग केवल नाम धारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। देव गुरु बृहस्पति कहते हैं, चंद्रदेव और मंगल देव जाओ और जाकर केंद्र में स्थान संभालो। और अपने को 2 भाव मिल गए उन्हें, और बुध देवता को उन्होंने चतुर्थ भाव और सप्तम भाव का स्थान देके न्यूट्रल किया, लेकिन सप्तम भाव की स्वामित्व मारकता तो देता है, नो डाउट अबाउट इट। बृहस्पति, मंगल एंड चंद्र। यहाँ पर मारक हुए सूर्य देवता, छठे भाव के स्वामी, शनि देवता सैटर्न, लॉर्ड ऑफ द 11th and 12th, and शुक्र देवता, लॉर्ड ऑफ द 3rd and the 8th. Ladies and gentlemen, we are done with योग कारक and मारक। भूलेगा जिंदगी में? अभी कोई भी कुंडली खोल के आपको इमीडिएटली देखने को मिल जाएगा ना कि कौन योग कारक, कौन मारक, कौन अच्छा कौन बुरा, कौन इस कुंडली का मित्र है, कौन मित्र नहीं है। सर लास्ट वाले में जो मरकरी होगा वो तो वो न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल। Any questions? So one question, please. Yeah, please. Sir, in Tula Lagna, sir, Moon was given the 4th house, 10th house lordship, right, sir? Yeah. So Venus was the lord of Lagna. Yeah. Sir, but Moon, since although Venus has its source in the Moon, but हाँ. Moon is still from the opposition party. Yeah. तो सर उसको हमने न्यूट्रल क्यों नहीं माना, उसको योग कारक क्यों माना? क्योंकि उनको केंद्र में एक ही स्थान मिला। 10th हाउस इज अ वेरी पॉजिटिव स्थान, और नंबरिंग के हिसाब से वो 10th हाउस में ही जाकर बैठे। ओके सर, थैंक यू। ओके। शुक्र है ना, शुक्र किसके आगे झुकता है? सर चंद्रमा। चंद्रमा के आगे क्यों झुकता है? बिकॉज उसका सोर्स है, तो जो भी सप्लाई लेनी है वहीं से। शुक्र झुकता है माँ लक्ष्मी के आगे। और माँ लक्ष्मी कहाँ से आए हैं? माँ लक्ष्मी की क्रिएशन कहाँ से है? सर मोहन पार्वती माता। माँ लक्ष्मी की क्रिएशन दुर्गा से है। दुर्गा के 3 रूप हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली। थ्री शक्तिज ऑफ दुर्गा। और दुर्गा कहाँ से है? कौन है दुर्गा? माँ पार्वती। माँ पार्वती। इसीलिए शुक्र का सोर्स जो है माँ पार्वती है। सर अगर भगवत गीता का जो एक ये है नॉलेज कि वॉट एवर वी टेक डू द वर्क, राइट, जो भी कर्मा करते हैं, राइट, वो कोई भी बिना फल के ध्यान से रख के आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जो है ड्यूटीज है वो कंप्लीट करिए। तो इसके वजह से 1st हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस आर ऑलवेज कंसिडर एज अ योग कारक प्लेसेस, राइट। एंड ये हाँ, और ये ड्यूटीज कंप्लीट करने के लिए हमको 3 प्लेसेस ऐसे हैं जो क्रिएट हर्डल्स इन आवर लाइफ, दैट इज 2nd हाउस, 7th हाउस एंड 11th हाउस। यस।
and therefore they are considered as a Marak Graha, right? Marak places. Yes. Okay. Good thinking. Good thought process. Thank you, sir. Okay. So Yes, sir. मेरा एक क्वेश्चन कर्मास से रिलेटेड है हाँ. सर। जैसे आपने बोला कि है ना मोक्ष के लिए सैटर्न का मतलब साइन होना बहुत जरूरी है। लाइक तो जैसे किसी किसी केसेस में, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था, जैसे आप एक रिलेटिव की कुंडली देख के आए एंड मतलब आपने कुछ चार्ज उनसे नहीं लिया, तो लाइक सर हमारे कर्मा जैसे हमसे कोई कुछ लेता है ना, तो हम उसको वापस कर देते हैं। लाइक हमने किसी से कुछ लिया, हमने उसका रिफंड कर दिया, बट हमसे किसी ने कुछ लिया और हमारा कुछ वापस नहीं किया, तो वो और हमारी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है उससे कि वो हमें वापस करे, तो क्या वो भी हमारे कर्माज में सेटल डाउन होगा? बिल्कुल होगा कि यार लेना कि वो अगले जन्म में जाके मतलब वो होगा। अगर हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे तो भी क्या हम उसमें मतलब अटक गए? अटक गए। आपने जुबान से किसी को क्षमा कर दिया, मन से नहीं क्षमा किया तो भी अटक गए। सर और दोनों तरीके से कर दिया तो क्लियर, कर्मा सेटल्ड। अच्छा। लाइक क्योंकि ऐसे बहुत केसेस में होता है ना, जैसे कोई कोई किसी को मनी बोरो मतलब करके दे देता है, लाइक है ना, तो हमने तो मान लिया कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिया कोई बात नहीं, सामने वाले ने नहीं दिया, तो उसमें फिर हम तो मतलब कर्माज में नहीं अटकते ना। किसी ने हमारा वापस नहीं किया, हमने माफ कर दिया दिल से, तो भी दिल से माफ कर दिया तो ठीक है। इसीलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि डोंट गेट इनटू दिस कर्मा थ्योरी, लीव इट ऑन मी, राइट। आप अपना केवल कर्म करो, भागवत गीता। क्योंकि ये जो संबंध है ना, इसको कोई समझ नहीं पाया। जब आप किसी को माफ भी कर देते हैं ना, फिर भी जो विधि का विधान है उसको फोर्स करता है कि तूने उसके साथ गलत किया था। क्योंकि आप क्षमा कर सकते हैं, कुदरत क्षमा नहीं करती, कुदरत नहीं क्षमा करती। Sir, then what is the solution in this case? सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है। सॉल्यूशन है हैव अ गुरु इन योर लाइफ। गुरु विल पिक अप योर कर्मास, द मंत्रास विल बर्न सच कर्मास। Okay. सर एक क्वेश्चन नहीं सर, एक चीज पूछनी है। कन्या और धनु लग्न में 4 मार्ग का प्लैनेट्स है, तो इट इज अ वेरी टफ लग्न टू बी इन। नहीं ऐसा कुछ नहीं, नहीं ऐसा कुछ कोई लगन जो है डिफिकल्ट नहीं है, कोई लगन अच्छा नहीं है। आपके कर्म डिपेंड करते हैं कि प्लेसमेंट्स ऑफ ग्रह कैसी है। प्लेसमेंट्स इज द मेन थिंग। धोनी का कन्या लगन है, डिपेंड ऑन द प्लेसमेंट्स ऑफ द प्लैनेट्स, ठीक है ना। और मैंने बहुत लोगों को सफर करते देखा है वृश्चिक लगन के साथ, एक्वेरियस लगन के साथ, स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग इन देयर लाइफ। They have so many yoga karakas. None of them are sitting. In fact, having more yoga karaka is a dangerous thing. Because अगर वो चारों के चारों अगर वो किसी खराब घर में बैठ गए तो आपका तो बेड़ा गर्क हो गया ना।